start our today's, and that is actually the last source of Islamic legal thinking. This is chaos. We started the chaos topic actually, but I will start it from the beginning. And if you remember, I explained chaos by giving you one example at the end, and I just said that take the example of nail polish case, and we started that way, right? So, what did we do in the last class? What did we discuss first? I will move to that discussion. I gave you a simple example of nail polish issue. The nail polish was not there in the time of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and the scholars have a issue. Like the case came, and the people said, if the woman has nail polish on her nails, is her wuzu complete or not? If she is performing wuzu and the nail polish is there, that case is not in Quran, not in Hadith. So scholars did what? They compared it with an old situation and they deduced the law and they announced that what is the ruling related to it. This is what I discussed with you. Today we will discuss it from the beginning, from the start, and what is the literal meaning of chaos. First, understand it. Okay, I have mentioned 2 3 definitions related to chaos. तो सबसे पहले आपने देखना है कि what is the literal meaning of chaos. So literal meaning of chaos is simply comparing two things together, or law deduced after comparing two things or two situations. When you compare two situations, when you find out the similarities between two situations and you make judgments based on that, that is literal meaning. Okay, in Islamic meaning we have two definitions. पहले एक definition देखते हैं which is easier. What's the definition? It is the process of deduction of the laws. Look at this one, this part. This is a good definition. Look at the definition. It's a process of deducing of laws in consultation with Quran and Sunnah, which are not clearly or directly stated in the previous three sources, which is Quran, Hadith, and Ijma. You got that one? This is one definition. The second definition is also good, and I think it is explaining the word qiyas itself. Next definition, अगर आप देखें, comparison between two things. One is known and the other one is unknown, which is the best way of explaining the word chaos itself. Do you compare between known and unknown? Known में क्या आएगा? Something which is mentioned in Quran or Hadith, or the law is already decided about it, right? So known is something which is explained in Quran or it happened in the past and the rule is there, and unknown is the new situation. To find out the new Islamic ruling, new Islamic ruling को हम क्या कहते हैं? हुक्म कहते हैं. आगे भी आपको वो words भी दिखा रहा हूँ. The known matter is Quran and Hadith, and unknown matter is the new issue. And the similarity between two of them is called, it's Arabic word which is called illa. The word illa is the similarity between known and unknown. वो अभी नीचे आ रहा है, ठीक है? Definition आ गई पहले. दूसरे नंबर पे you are going to talk about approval. Is qiyas allowed in Islam or not? We need a reference for that. So what is the reference and what is the proof that qiyas is allowed in Islam? I have mentioned one hadith here, which I discussed in the very beginning. The hadith is of Hazrat Maaz bin Jabal, if you remember. And when I was telling you Quran and hadith as a source of law, I told you, I gave you the example of the hadith of Hazrat Maaz bin Jabal. That hadith is going to be there. Prophet asked Hazrat Maaz, how you're going to judge between the people? He said, with Quran. He said, if you cannot find in Quran, then he said, I will use Hadith. And then Prophet said, if you cannot find the matter in Hadith, what you will do? Hazrat Maaz said, what? I will use my opinion. या यहाँ पे अगर आप देखें last line के अंदर, he said that I will make ijtihad of my own opinion, and Prophet approved that. When that's a proof, okay, you are scholar is allowed to use his judgment, but not everyone is going to do that. The person should have specific qualities जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है right side पे. These qualities should be there in that person. He should have knowledge of Quran, Hadith, and all of these things. So this is going to be the criteria. That person is allowed to do that one. Of course, Holy Prophet's companions were expert. They lived with Holy Prophet. They were knowledgeable people. So they are having ability कि वो laws को deduce कर सकते थे. आगे आ जाता है ये जो चीज़ है जिसके ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी और इतना टाइम शुरू में डिस्कस किया, वही है. What are the 4 pillars of qiyas? What are the 4 fundamental parts of qiyas? Look at them. सबसे पहले क्या है? Asal. Second is, it's called, it's actually, it's not far. It's fara. If I say in Arabic language, in Arabic we write it like this. This is fe, re,
Ain. It's ain. Fara is branch or a new. When a plant grows, there is a new stem which starts growing from the main trunk or the main stem. This is called fara in Arabic language. So you are basing a new rule based on the original rule. This is why we call it as fara. So we have asal, we have यहाँ पे you can make apostrophe, it's better. We have asal, we have fara, we have illa. This is illa, which is the third pillar, and the fourth pillar is hukum. Examiner is looking for these four parts or the pillars here in your answer. So you should be specifying them and you should be mentioning with them with their definitions. Okay. So asal, fara, illa, and hukum. They are the four pillars or the four fundamentals of qiyas. First is asal. A-S-A-L. Asal. Asal means known condition. Asal in Arabic, normally we say Quran और हदीस का कोई law जहाँ से deduce हुआ है उसको हम असल कहते हैं. Asal, fara, illa, and hukum. You got that one? So they are the three ones. Yes. मैं आता हूँ. क्लास में भेजना स्टार्ट वीडियो ऑनलाइन कोई मसला नहीं है. ठीक, कोई इशू नहीं है. थैंक यू. ठीक है. अच्छा, तो फोर पार्ट्स हो गए. इज इट क्लियर? अब इसकी एप्लीकेशन पे हम आएंगे नीचे एग्जांपल्स पे. आपके आंसर में अभी तक कितने पार्ट्स हो गए? इंट्रोडक्शन हो गया, अप्रूवल हो गया रेफरेंस के साथ, तीसरे नंबर पे क्या चीज आ गई? असल, फरा, इल्ला एंड हुक्म. ये चार चीजें हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई? कवर हो गई. नाउ व्हेन यू मूव ऑन फर्दर, जब हम नीचे जाते हैं, अब आपके पास आ जाती है एग्जांपल्स वेयर रूल्स आर सेट बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना. तीन चीजों के बाद डायरेक्ट अब कौन सी चीज आ गई? एग्जाम्पल्स हैं. अब कयास आप जो है ना, या तो कुरान पे बेस करेंगे या आप कयास किसके ऊपर बेस कर रहे होंगे? हदीस के ऊपर कर रहे होंगे. जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दी थी नेल पॉलिश की, वो मैंने किसके ऊपर बेस की हुई थी? वालेकुम सलाम. वो किस पे बेस थी? हजरत आयशा की हदीस. तो वो कौन सा कयास हुआ? कयास बेस्ड ऑन हदीस. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ कयास व्हिच इज बेस्ड ऑन कुरान. पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. कुरान में अल्लाह ताला ने, वैसे तो हम वही फॉलो नहीं करते, हमें वो भी ख्याल करना चाहिए. कुरान में अल्लाह ताला ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर जुम्मा प्रेयर, व्हेन यू कॉल्ड फॉर फ्राइडे प्रेयर, लीव योर बिजनेस. अब द मीनिंग ऑफ द बिजनेस इज सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द थिंग्स इन द मार्केट, राइट? कुरान ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर जुम्मा प्रेयर, लीव ऑफ योर बिजनेस, स्टॉप योर सेलिंग एंड परचेजिंग इन द मार्केट. ये कुरान की रूलिंग है. ये तो क्लियरली पता है. ये क्या है? असल है. न्यू केस आ गया स्कॉलर्स के पास. कैन द पर्सन डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आफ्टर जुम्मा अजान? प्रॉफिट के टाइम पे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं थी. अब नया केस आ गया. ये क्या है? फरा है, न्यू इशू है. कैन वी डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आफ्टर द जुम्मा अजान इज कॉल्ड? तो अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मीन्स कि आप घर बैठ गई, मैं मोबाइल पे आप ओपन की, पैसे ट्रांसफर कर दिए और बिल पे कर दिया. जुम्मे की अजान के बाद, जुम्मे की अजान हो गई. नहीं नहीं, किसी को बिल पे करना है, स्कूल की फीस पे करनी है, कोई इस तरह का काम है. अपनी आफ्टर द अजान इज कॉल्ड. कुरान की देखें, कुरान की रूलिंग मैंने आपको बताई. कुरान सेड व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर जुम्मा प्रेयर, जब अजान हो जाए, लीव योर बिजनेस एक्टिविटीज. तो जब आप ओरिजिनल मीनिंग देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज का, जो कि वहां पे क्लियर होता है, वो मार्केट में जाके सेलिंग एंड परचेजिंग है. ठीक है, उस वक्त तो ऐसी ही होती थी ना, सेलिंग परचेजिंग. अब आपकी परचेजिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी है. असल नोन क्या है? मार्केट में सेलिंग परचेजिंग प्रोहिबिटेड है जब जुम्मे की अजान के लिए बुलाया जाए, क्योंकि आपको नमाज की तैयारी करनी है. क्या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं घर से बैठ के मोबाइल में? नमाज अजान हो गई, अब आपने कहा चलो मैं मोबाइल निकालता हूँ, मैं थोड़ा फीस पे करनी है, कुछ है. कुरान में तो मार्केट वाला मना है ना, ये का तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ. अब स्कॉलर्स इस पे क्या करते हैं? कयास करेंगे. जुम्मे की अजान के बाद मार्केट में सेलिंग परचेजिंग क्यों मना है? Because sir, Quran is written that give all. Quran has mentioned that, but what could be the possible reason? It will be short time. It wastes your time. It delays in the preparation for Jummah prayer. You got the point? अब इधर आप देखें, आप मोबाइल खोल के बैठे, इट ऑल्सो डिलेज फ्रॉम द प्रिपरेशन, क्योंकि योर फोकस इज डिवाइडेड. यू आर टेकिंग आउट द मोबाइल, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, टेक्स टाइम एंड इट्स डिलेइंग इन द प्रिपरेशन. कैन यू फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम? द डिले इन द प्रिपरेशन फॉर प्रेयर. Anything which delays in the preparation for Jummah prayer is prohibited. So ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी प्रोहिबिटेड है अगर आप जुम्मे की अजान के बाद करते हैं. ठीक है, अब ये एग्जांपल थोड़ा सा समझ लें. मैं आपको 2 मिनट देता हूँ. आपको मैं थोड़ी सी इसमें ना की चीज़ें हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इट इज टॉकिंग अबाउट अ रेफरेंस ऑफ कुरान. जो ऊपर है इसको छोड़ देंगे, कुरान की वर्स है. कुरान क्या कहता है? कुरान हैज क्लियरली फॉरबिडन
हम तो यही नहीं करते वैसे भी, उसी टाइम जाते हैं जल्दी जल्दी मस्जिद में, नमाज से पहले कुछ खरीदते हैं कि दुकान वाला शटर डाउन ना कर दे, जल्दी से चीजें ले लो। लाइक बाहर के कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, स्टिल कुछ कंट्रीज में जो मुस्लिम कंट्रीज में, वहां पे अजान होते ही जुम्मे की शॉप्स बंद हो जाती है, करते हैं ना, इसीलिए वहां पे क्लोज। लेकिन जहाँ नहीं है वहां की बात हो रही है, इस बाद में कर सकते हैं। तो मतलब बंद कर दो, बाद में ले लेना, ऐसा क्या जल्दी है, क्या हो गया? नहीं, वो बंद होती है थोड़ी देर के लिए, वो भी रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाना कोई चीज़ है। लेकिन जनरल देखें, रूल की बात होती है कि जब आप जुम्मा नमाज के लिए आपको कॉल किया है, थैंक यू, शुक्रिया, ठीक है। तो जुम्मे की अजान के लिए ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, ठीक है, ठीक है। अब समझ आए, अब आपने थोड़ा सा इस पे गौर करना है, इसमें असल क्या है, इसमें फरा क्या है, ठीक है, दो चीजें। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, इल्ला, सिमिलैरिटी क्या है, और चौथी चीज क्या है, हुक्म क्या है। अब इस एग्जाम्पल के ऊपर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो एग्जामिनर आपको ग्रेड देता है तब जाके। अगर एक बच्चे ने खाली लिख दिया ना कि कियास की एग्जाम्पल ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोहिबिटेड है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा हुआ, यू विल नॉट गेट मार्क्स। यू आर गोइंग टू डेवलप इट इन दिस वे, यू कैन सी टू पैराग्राफ्स। पहले आपको मैंने कुरान का एक रेफरेंस बताया जिसमें कुरान ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर जुम्मा प्रेयर, लीव ऑफ योर बिजनेस एंड यू हैव टू रश फॉर द प्रेयर्स। अब बिजनेस की मीनिंग नीचे एक्सप्लेन हुआ है, कुरान ने तो मेंशन कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू डू द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ओके, दिस इज असल द न्यू मैटर अराइजेस, आर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड? या गेम्स खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? अजान हो गई जुम्मे की, आपने कहा मैं थोड़ा सा लेवल पूरा कर लूं, नहीं खेल सकते, तो रीजन, तो यू गॉट द रीजन, क्योंकि इट विल डिले इन द प्रिपरेशन, ठीक है। जेन्युइन कोई रीजन हो एक अलग चीज है, अगला ना करे कोई डॉक्टर है किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है कोई, वो एक एक्सेप्शन है, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, ठीक है। ये जो है जनरल, स्कूल से आप कहें मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं तो स्कूल से आता हूँ तो अजान हो जाती है, नो, वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट यूजलेस चीजें हैं जो आपकी एक्स्ट्रा डिविएट करते हैं। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये कौन सी एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कयास विच इज कनेक्टेड विद कुरान। यहाँ पे मैंने आपको सोर्स क्या दिया ऊपर शुरू में, कुरान दिया है, इज इट क्लियर? इसी तरह एक और एग्जाम्पल नीचे मेंशन हुई भी है, कुरान में अल्लाह ताला ने अल्कोहल को प्रोहिबिट क्लियरली किया। नए नए नाम से नई नई ड्रग्स लॉन्च होती हैं मार्केट के अंदर हर टाइम पे ग्रेजुअली, आर दीज ड्रग्स अलाउड और नॉट? तो स्कॉलर्स फिर क्या करते हैं, कयास करते हैं, कैसे करते हैं? या एक सबसे बड़ी कॉमन है, बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ऑनलाइन गैम्बलिंग होती थी, नहीं होती थी? अब गैम्बलिंग होती थी, तो अब वो जो गैम्बलिंग फिजिकल है उसको कुरान ने प्रोहिबिट कर दिया। अब ऑनलाइन जो बेटिंग होती है, क्रिकेट मैचेस के ऊपर लोग बेट करते हैं, या और जो हॉर्स राइडिंग पे बेटिंग होती है, तो प्रोहिबिट हो गई। या आजकल डिफरेंट फॉर्म से गेम्स ऑफ चांस चल रही हैं, मोबाइल्स में कुछ ऐप्स आ गई हैं, आप गेम्स ऑफ चांस में पार्टिसिपेट करते हैं, स्कॉलरली अलाउड नहीं है क्योंकि वो लिंक्ड है। क्योंकि गैम्बलिंग क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि वो गेम्स ऑफ चांस में आ जाती है। तो इसी तरह स्कॉलर्स ने उसके ऊपर बेस करके उसको भी प्रोहिबिट किया है। अल्कोहल इज नॉट परमिटेड, इजंट इट? इट इज नॉट अलाउड क्योंकि वो, अच्छा इसकी एग्जांपल सर, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट जाऊंगा। ये सवाल ना एक दफा एक पायलट से, सॉरी, एक जहाज में कुछ लोग बैठे हुए थे, एक नॉन मुस्लिम ने मुस्लिम से पूछा, व्हाई यू आर नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल? ही सेड, कैन यू गिव दिस अल्कोहल टू द पायलट? He said no. He said why? The foreigner, the non-Muslim said that he will go mad. So he said, then why you are drinking it then? Because you realize it will make you out of senses. So it's harmful. Now the research is going on. The science is proving its disadvantages these days. And number of cancer-related diseases are connected with it. So it's harming your body. So again, Allah has prohibited us. There is a hikmah reason behind it. Yes? There was actually, that is to save their life or such cases there, but people were addicted to it before. That is actually you're talking about when Allah prohibited it. I think the people threw it, and I think something like that. This is related to this one you're talking about because Allah has not prohibited it at once. It's an addiction. Addiction cannot be finished in just a moment. It will not be ending in few seconds or minutes there. So it takes time. So Allah has made it forbidden in 3 different phases. So yes, you can sit if you want. Sit down. Okay, I think you came earlier because of the old timings, right? Okay, no problem. So alcohol is prohibited actually. Why the rest of the things are, why alcohol is prohibited? Because it intoxicates you. Anything which intoxicates you is also
प्रोहिबिटेड। या इसी तरह गेम्स ऑफ चांस की भी एग्जांपल है यहाँ पे। ये मैंने एक एग्जांपल आपको डेवलप की कयास की, और वो है बिजनेस डीलिंग्स आफ्टर जुम्मा अजान। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। और मैं अगली एग्जांपल पे आता हूँ। अब्दुल हन्नान का क्वेश्चन, नॉन अल्कोहलिक पर अल्कोहलिक हो ही नहीं ना फिर तो। अल्कोहलिक, हाँ, यस। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स डिस्कस, नहीं, लकी ड्रॉज दो तरह के होते हैं। लकी ड्रॉज जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपने वो परचेज किया है, कोई टिकट किया है और सारा सारे के सारे, हाँ उसको बोले बिल्कुल सर देख रहे हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं करते, कोई भी माना एक सवाल पूछ के निकल लिया उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्कॉलर्स से ना वैसे पूछें, ज़्यादा बेटर बताएंगे। अभी मैं जो हूँ ना कयास के मेन टॉपिक को चाह रहा हूँ कवर कर लूँ, तो जल्दी से हैं वापस। एक एग्जाम्पल समझ आ गई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। कयास की वो एग्जाम्पल जो किसके ऊपर बेस्ड है, हदीस के ऊपर बेस्ड है। कौन सी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है? नेल पॉलिश वाला केस। लुक एट दिस वन। टू अंडरस्टैंड दिस आई एम गिविंग यू 2 minutes, हैव अ लुक एट इट क्विक। समझ आ गई? पढ़ा ही नहीं। हम्म। Said what is any part of the nail, like natural nails, then it would be invalid. Anything which becomes a barrier between the body and the water, like water is not reaching due to that barrier, the wuzu is not complete except few cases, like the bandage is there or small injury and you have covered it with some pyridine or something there, that's a different case there. Yes, loudly. Yeah, maybe that's the issue, or someone like someone has a genuine issue, that's a different case there. But in normal case, because the case of henna or the mehndi is different. When you have applied mehndi on your hand, it's not a coating, it's just a color. When we talk, but urgent mehndi has a different case because it forms a coating over there. We are talking about the normal mehndi case there as well. Yeah. Now, what I want you to understand here, what is the asal in it? What is asal? The asal is Hazrat Aisha's hadith. This is asal. Okay. What is fara? What's the new case? The new case is nail polish. In case of nail polish, what's the similarity? The water has not reached, or you can say here, the water has not reached the body, and the hukum, the decision is the wuzu is not complete. Understand? So they are the examples. We have two examples till now. We have another example, but I will give you a different example. A person is not allowed, no, that's for Islamiyat. Yeah, you can pass it. A person is not allowed to go to masjid immediately after smoking. Why? Smoking is allowed or not, that's a different discussion. I'm not talking about it. I'm talking about if the person has just smoked, is he allowed to go to masjid? No. What's the reason? So how you are saying that smell from his mouth is not good? Yes. Agree. Is there any hadith of Holy Prophet which states about prohibition of going to masjid with a bad breath or a bad smell in your mouth? और वो भी अच्छा है, और सोचें। Actually, there is a hadith of Holy Prophet which says, if someone eats raw onion or raw garlic, do not go to the masjid. With the person is not allowed to go to the masjid if someone has eaten raw onion or garlic. That's the hadith. Until he cleans his mouth. Similarly, based on that hadith, we are doing it, qiyas. So the person who just smoked and the person who ate raw onion or raw garlic has the similarity, the smell coming from the mouth. So that person has to clean his mouth, this person also has to clean his mouth. Okay? The suicide is also prohibited in Islam. Based on what? Yes. Did Quran mention about that you are not allowed to commit suicide? Yes. Based on anything? Quran says that you can't, like Allah can celebrate. That's a good point. But there is another Quranic verse. Quran says, do not put your life in danger. Do not put yourself in difficulty or the problem. So based on that, harming yourself or committing suicide is also prohibited. So you can see the similarity.
Got it? So here you are harming your body. Here Allah has stopped you from harming, and this is the case of harming. So that is prohibited or that is not allowed. Okay. We have more examples here. We have one more example here. We have one more example here. You can take any two examples, a minimum. One between Quran and Qiyas and one from Hadith and Qiyas. अब आपको ये कैम्ब्रिज में क्वेश्चन कैसे आता है? आई विल शो यू द डिफरेंट वेज हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड. लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू दिस, आई विल recap Qiyas outline once quickly. Whenever you are writing a note on Qiyas topic, you will introduce Qiyas first. Second thing, you are going to mention a reference from Quran or Hadith to support कि yes, Qiyas is a pillar or a part of a law, a source of a law. It is allowed or not? You will talk about it. And then you are going to talk about fundamentals of Qiyas, the arkan, the pillars of Qiyas. What are the pillars of Qiyas? Asal, Fara, Illa, and Hukum. These four pillars have to be discussed and explained. After this is 3 paragraphs done. Fourth paragraph is talking about example of Quran and Qiyas, and the fifth paragraph is going to be example of Hadith and Qiyas. There is one more possible paragraph in your answer. Why do some scholars do not accept Qiyas as a source of law? Some scholars support Ijma more and they do not support Qiyas. So what is the reason why some scholars do not accept Qiyas as a source of law? Yes. Sometimes the comparison, sometimes over time, the Ajma, it might like have a solution. And if there is a solution in Ijma, then there is no need for Qiyas then. So Qiyas might be unreliable sometimes. Like what's the reason? The Hadith might change over time. Hadith is same. Yes, you are close, but there is a reason, different development here. Because Qiyas is individual work and there is a chance of mistake. Okay, so there is a chance of mistake and error there, and therefore scholars say that Qiyas is not a reliable source. Mostly Sunni school of thought scholars accept Qiyas as a source of law. Shia school of thought, they have alternate of Qiyas, which is called Aql. So that could be another reason that the scholars who do not accept Qiyas as a source of law, they have alternate to it, which is Aql. In Aql, you don't have to find out the similarity. Because in Shia school of thought, जो imam होता है, जो scholar होता है, he has a right to make judgment. There is no need to justify. There is no need to give reasons. That this is Walaikum Salam. So there is no need to justify there. So you just need to go on directly. So that is another reason. Some scholars who deny Qiyas as a source of law, उनका एक और भी reason. वो फिर इजमा को भी डिनाई करते हैं. और उसका रीजन ये है, दे से कि अगर आपको कुरान और हदीस के अलावा किसी सोर्स की जरूरत पड़ रही है, इट मींस कुरान एंड हदीस आर नॉट कंप्लीट कोड ऑफ गाइडेंस. हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इजमा और क़यास भी तो कुरान और हदीस पे ही बेस्ड करते हैं. अंडरस्टैंड? बट एनीवे, कैम्ब्रिज का एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, व्हाई डू सम स्कॉलर्स डू नॉट एक्सेप्ट क़यास एज अ सोर्स ऑफ लॉ? तो यू शुड हैव रीजंस फॉर दैट. It's a 4-mark question and sometimes part of a 10-mark question. Because in the list outline, they say, and why some scholars do not accept Qiyas as a source of law. Clear? Let's have a look at, again, ये आपकी outline आ गई. अब नीचे जो मैं आपको बता रहा था, this is arguments against Qiyas. What are the arguments? They are the arguments. You can see the issues or the concerns regarding Qiyas, which is mentioned there. Check it quickly, then I will move on. इसी के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन भी बेस्ड है. ठीक है, वो क्वेश्चन क्या ये है? यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन? सेकंड लास्ट लाइन ये आपसे कह रही है कि कयास में आप एक न्यू इशू को ओल्ड के साथ कंपेयर करके एक नया डिसीजन लेके आते हैं. देखिए ना, एक ओल्ड इशू है, वो नोन है, आपको पता है उसके बारे में. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, कुरान में मेंशन हुआ हुआ है. ठीक है, लेकिन जो एलएसडी है, कोकेन है, इस तरह की चीजें अभी लॉन्च हुई हैं, ये हलाल है या हराम है? अब स्कॉलर्स क्या करेंगे, एक ओल्ड इशू को न्यू इशू के साथ कंपेयर करेंगे. वो क्यों प्रोहिबिट था? तो वो इंटॉक्सिकेट करता था, आपको सेंसेस से निकालता है. आज भी कोई इस तरह की चीज लॉन्च होती है, किसी किस्म की भी ड्रग जो है,
तो वो आपकी प्रोहिबिट हो जाएगी, क्योंकि कॉमन रीजन क्या है कि वो आपको इंटॉक्सिकेट कर रहा है, तो वो किसी भी ड्रग के ऊपर जा सकते हैं। कयास इज डन बाय सिंगल पर्सन। कयास इज डन बाय सिंगल स्कॉलर होगा। गलती हो सकती, दैट्स द रीजन। अब जाके गलती होगी तो दूसरे स्कॉलर्स, इजमा कलेक्टिव। वेरी गुड। अभी मैं आपने मेरे अगले क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस यहीं पे कर दिया। अगला क्वेश्चन यही आने वाला है। यस, Can we include bananas thing like to have लाउड, a bit louder. can we like mention like bananas day will sell this day last? No, there is no need for that. They can. कैम्ब्रिज पहले लिखता था कि दैट स्कूल ऑफ थॉट अलाउज इट एंड दैट स्कूल ऑफ थॉट डू नॉट अलाउड इट। नाउ दे सिंपली से सम स्कॉलर्स करके, एंड दे डू नॉट स्पेसिफाई दैट वन नाउ। तो इफ यू वांट यू कैन, इट्स नॉट दैट रिस्ट्रिक्शन ओवर देयर। अच्छा, व्हाई डू सम स्कॉलर्स डिनाई द यूज ऑफ कयास, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, और आपको कयास के हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में पार्ट भी यही मिलेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ, आपको रियलाइज हो जाएगा कि कितनी दफा ये चीज पूछी हुई है। वी हैव अनदर क्वेश्चन, और दोज हु आर, हाँ फोकस इधर हो। क्वेश्चन ये है कि आर इजमा एंड कयास इक्वली इंपॉर्टेंट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट इजमा एंड कयास आर इक्वली इंपॉर्टेंट? गुड। एंड हाउ मेनी थिंक इजमा इज मोर इंपॉर्टेंट देन कयास? ओके। एंड हाउ मेनी थिंक कयास इज मोर इंपॉर्टेंट देन इजमा? ऑल आंसर्स आर फाइन। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज दिस इज योर चॉइस, क्योंकि कैम्ब्रिज ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना। दिस इज यू हु इज गोइंग टू डिसाइड इट। आप जो भी पॉइंट लेते हैं उसकी जस्टिफिकेशन चाहिए। बाय द वे, बोथ इजमा एंड कयास को आंसर करना आसान है इफ यू से बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसमें एक पॉइंट देंगे इजमा के बेनिफिट्स पे, दूसरा देंगे कयास के बेनिफिट्स पे, आपका आंसर पूरा हो गया। जो कहता है कि इजमा इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइक सम स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट दैट वन, ये अभी आरएस ने भी क्वेश्चन डिस्कस किया। आप कहते हैं इजमा इज मोर इंपॉर्टेंट, तो आप रीजंस देंगे क्योंकि वो कलेक्टिव वर्क है, और कलेक्टिव वर्क में चांसेस ऑफ मिस्टेक जीरो के करीब होती है, कम होती है। जबकि कयास इंडिविजुअल वर्क है, और इंडिविजुअल वर्क में चांसेस ऑफ मिस्टेक के हाई मतलब चांसेस होते हैं। तो दैट इज द रीजन। अच्छा, अब उसका बेनिफिट क्या? हु विल टेल मी कि वी आर सेइंग कि कयास इज इंडिविजुअल वर्क, दिस एंड दैट, इट हैज डिसएडवांटेज, बट व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ कयास कंपेयर टू इजमा? less Okay. which is their opinion, Hmm. details. When many people are sitting there, you know, there is a conflict and there is a more debate possible there. They might be not able to reach the decision. Yes, You have the agreement. exactly. In chaos, you just connect it clearly with the Quran and Hadith verse directly. एक और भी point आपको बताता हूँ। इजमा में, chaos में, sometimes you are stuck in a issue where you are all alone. So you can use qiyas based on whatever the religious knowledge you have to make the decision, rather than waiting for the whole scholars to sit together and to sort out the problem. Okay, so this is you who is going to give reasons. यहाँ मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, by the way। आपने सिंपली इसको यहीं से चूज करना है, ठीक है। कयास की आउटलाइन डिस्कस हुई। कयास कैम्ब्रिज के अंदर अभी रिसेंट पेपर में भी आया हुआ है, दैट केम इन 2024 पेपर। आई डोंट नो एग्जैक्टली, इट केम इन मई जून और अक्टूबर नवंबर, क्योंकि मई जून अक्टूबर नवंबर दोनों में ही सोर्सेज ऑफ लॉ आया है। एक में 4 सोर्सेज पूछे हुए थे और एक में उन्होंने सिर्फ कयास पूछा हुआ है। तो और उसमें कैम्ब्रिज ने लिखा हुआ था मेंशन वन एग्जाम्पल। अब मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उनको मार्क्स भी मिले और उनको अपने ग्रेड्स भी पता चले, मार्क्स भी पता चले। आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 मई जून। सो देर आर सम स्टूडेंट्स लाइक दे टोल्ड कि वी गॉट 47 आउट ऑफ 50। ये पेपर 2 का पे मार्क्स बता रहा हूँ, इस्लामियत के मई जून के। इफ यू गेट 47 आउट ऑफ 50, व्हाट डज इट मीन्स? यू मे हैव अचीव्ड 14 आउट ऑफ 14 इन वन ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल, मे बी। ओके, और एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 10 आपके चांसेस हैं। तो ये कब आएगा? जब आपका आंसर बहुत परफेक्ट होगा। अब माय सम स्टूडेंट्स दे गॉट 47, हाईएस्ट 47 आया था, किसी के 44, 45 में 43 है। व्हेन आई आस्क्ड सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके 43 थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग उनका भी अच्छा होना चाहिए, और जिसके 47 है, 47 वालों ने मुझे स्ट्रेट कहा, सर हमने एक ही एग्जांपल लिखी और वेल एक्सप्लेन एग्जांपल लिखी, ये 2 की अटेंडेंस रह गई है, हलीमा की। और तो हमने जो है एक ही एग्जांपल लिखी है और वेल एक्सप्लेन लिखी है, उनको 47 मिले। और जिन्होंने 3-4 एग्जांपल्स लिखी हैं, जस्ट आइडेंटिफाई किए हैं, उनके 42 43। अब वो रीजन क्या है? कि 10 मार्क के क्वेश्चंस में आया हुआ है ये जुमा के यार, One example. दैट दे हैव स्पेसिफाइड हाउएवर यू शुड गिव एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2। Yeah.
But we don't have, yeah, here we have to guess. So it depends on the building. Hmm. That is 4 mark question. This is asking you if you are choosing an opinion, justify it by 2 reasons. You got that? And so, and the last guys house is written. वो A part, I'm talking about A part. मैं आपको वो दिखा देता हूँ चलो. I have to go to the next topic as well. That is May June 2024. ये पेपर है आपके सामने. I think it's paper 2, not paper 1. Sorry. This one. Look at this. This is the question, which came in May June 2024. ये question है क्या इसका? Describe analogy and how it is used in making Islamic legal thinking. Give one example to support your answer. अभी मैंने आपको कयास एक्सप्लेन किया है. आपके सामने कैम्ब्रिज की ही एक्सपेक्टेशन है. अब आप देखें क्या मैंने कोई चीज इसमें से मिस की है. पहले हम वो देखते हैं. मैंने आपको क्या कहा, यू हैव टू स्पीक अबाउट कयास एज अ फोर्थ सोर्स ऑफ लॉ. ये एग्जामिनर ढूंढेगा आपके आंसर के अंदर पॉइंट कि डिड यू मेंशन इट एज अ सेकेंडरी, प्राइमरी, और डिड यू मेंशन इज द फोर्थ वन और द थर्ड वन. ये आपके आंसर में चेक होगा. सेकेंड थिंग इज डेफिनेशन ऑफ कयास, दैट इज मेंशन देयर. थर्ड थिंग यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज कयास, जब बाकी 3 सोर्सेज क्या हो, साइलेंट हो. बाकी 3 कौन कौन से हैं? कुरान, हदीस एंड इजमा. तो यू नीड टू टॉक अबाउट दैट वन एज वेल. और उसके बाद जो दूसरी चीज है ये है रेफरेंस ऑफ हजरत माज बिन जबल की हदीस आ गई. गॉट इट. उसके बाद 3 एलिमेंट्स नहीं है, ये 4 है. उसने फोर्थ खुद यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नजर आ रहा है. तो दे आर 4: असल, फरा एंड इल्ला, एंड देन द लास्ट वन इज हुक्म. ये आंसर में आपके लाजमी होना चाहिए. उसके बाद आपने इसने रेफरेंस दे दिया, कैम्ब्रिज ने खमर वाला दे दिया, वाइन वाली एग्जांपल दे दी. आप वाइन वाली दे दें. कैम्ब्रिज ने आपको कहा है स्टूडेंट कोई और भी एग्जांपल चूज कर सकता है, और आपने ये वाली बिजनेस ट्रांजैक्शन वाली जो मैंने आपको बताई थी वो भी इसने ऑप्शन में दिया हुआ. यू हैव टू मेंशन असल क्या है, इल्ला क्या है और फरा क्या है. सारी चीजें वहां पे क्या होंगी. सर अगर यहाँ एग्जाम्पल ना मेंशन और हमने लिखी और वो फिर भी ठीक हो तो मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल लिखे. अगर यहाँ वाली लिस्ट में वो नहीं है कोई मसला नहीं है. आप उसको दूसरी वाली एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर. ठीक है, काफी ऑप्शंस होती हैं, एग्जाम्पल्स आप कोई भी उसमें चूज कर सकते हैं. ये क्वेश्चन था जिसके ऊपर थोड़ा सा हमारा टाइम लगा. मैं आपको इसका सॉरी पार्ट बी भी दिखा दूं. ये पार्ट बी है. व्हाट डिड आई टेल यू कि नॉर्मली क्लास पे जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या साथ में होता है? व्हाई सम स्कॉलर्स आर रिलक्टेंट टू सॉल्व द प्रेजेंट डे इश्यूज बाय कयास. ये आपके पास एग्जांपल है, रीजन आंसर है. ठीक है, सर एक एग्जांपल. इसमें एग्जांपल नहीं देनी होती, इसमें आपने रीजन देना होता है कि व्हाई यू आर सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग दैट ओपिनियन. ये 4 मार्क का क्वेश्चन, ये 4 मार्क का. ठीक है. अब मुझे एक एग्जांपल याद आ गई क्योंकि कई बच्चों ने ना मुझे लास्ट जब मैंने एक्सप्लेन किया तो दे सेड के सर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं जो कयास और इजमा दोनों में मेंशन हुई हुई थी. तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ. कई दफा ऐसा होता है आपके पास कभी कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो कयास की होती हैं, बाद में उसके ऊपर इजमा हो जाता है, कंसेंसस हो जाता है. ठीक है, और वो लॉ बन जाता है, फिर वो इजमा भी. एग्जांपल देखें. एग्जांपल है हमारे पास हजरत उमर की कैलिफेट में एक केस आया. हजरत उमर के पास केस ये आया कि जो ड्रंक पर्सन है उसको पनिश क्या करना है और कैसे करना है. इधर फोकस हो, धूप मुंह पे नहीं आया. हजरत उमर के पास केस आया कि ड्रंक पर्सन को पनिश क्या करना है, कैसे करना है. अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो ड्रंक पर्सन था उसको कभी जूते से मारते थे, कभी वो जो हाथ में चीज आती है उसको मारते. कितनी दफा मारना है, पनिश करना है, कोई फिक्स नंबर नहीं था. हजरत उमर वांटेड कि इसकी कोई फिक्स पनिशमेंट पता चल जाए. ये काम किसको दिया हजरत उमर ने? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को. हजरत अली को ये टास्क असाइन किया कि आप, क्योंकि वो नॉलेज उनका था माशाल्लाह से, तो हजरत अली को कहा कि आपने डिसाइड करना है कि ड्रंक पर्सन को कैसे पनिश किया. हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कयास किया. कैसे किया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो ड्रंक पर्सन है इसकी पनिशमेंट है 80 लैशेस. अब रीजन क्या था? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान की एक वर्स जो है वो वहां पे लिंक की, और कुरान की वर्स हजरत अली ने जो मेंशन की उसमें ये लिखा हुआ था जो किसी एक चेस्ट वुमेन को एक्यूज करेगा, फॉल्स एक्यूजिशन लगाएगा, झूठा इल्जाम लगाएगा, उसकी पनिशमेंट क्या है कुरान में? 80 लैशेस है. तो 80 लैशेस पनिशमेंट किसकी है? फॉल्स एक्यूजिशन ऑन अ चेस्ट वुमेन के ऊपर. अब यहां पे हजरत अली ने उसको क्यों लिंक किया? हजरत अली सेट के दोनों में सिमिलैरिटी.
ड्रंक पर्सन को भी अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है, और जो चेस्ट वुमेन के ऊपर एक्यूजेशन कर रहा है वो भी आउट ऑफ सेंसेस और विदाउट कंट्रोलिंग हिज माउथ स्पीक कर रहा है। तो सिमिलैरिटी क्या है? दे बोथ आर यूजिंग देयर पावर ऑफ स्पीच रॉन्गली। उसकी पनिशमेंट 80 लैशेज है, इसकी भी 80 लैशेज होगी। अब वो कयास है हजरत अली का, अब वो लॉ बन चुका है आफ्टर द इजमा ऑफ द स्कॉलर। यू गॉट दैट? तो कभी कभी कोई एक स्कॉलर का कयास बाद में लॉ बन जाता है, तो वो इजमा भी हो जाता है जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तो आपकी एक हाईएस्ट लेवल पे चली जाती है, इजमा की जो डिटेल में आ जाता है। ठीक हो गया, समझ आया? मेरा प्लान ये था कि आई हैव टू स्टार्ट वन मोर टॉपिक टुडे बट वी स्टक हियर। अच्छा सॉरी, बिफोर आई एंड दिस डिस्कशन, लुक एट फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू कयास इन प्रीवियस ईयर्स। 2024 से पहले कयास में जो क्वेश्चन आया था वो आया था अक्टूबर नवंबर 2020 के अंदर। क्वेश्चन की वर्डिंग आपके सामने है। यहाँ पे एक चीज लेकिन गौर करना है आपने, यहाँ पे आपसे उसने कहा डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू मेक जजमेंट कयास यूजिंग कुरान एंड हदीस। तो आपको कितनी एग्जांपल्स चाहिए? मिनिमम दो चाहिए। एक आपकी कयास की एग्जांपल बेस्ड ऑन कुरान होगी और एक एग्जांपल बेस्ड ऑन क्या होगी? हदीस होगी। तो ये चीज आपने वहां पे क्या करना है, ख्याल रखना है। यस यू आर राइट कि देयर वाज कयास फर्स्ट हजरत अली के ऊपर, हजरत अली ने इस पे कयास किया और फिर उसके बाद इजमा भी हो गया, स्कॉलर ने मिलके एग्री कर लिया, इसलिए ये फिर इजमा बन जाता है। जब एक एक स्कॉलर का जो कयास है, मेजॉरिटी स्कॉलर्स उसको एग्री कर ले, तो वो इजमा की शक्ल में चला जाता है। ओके, एक और दफा कयास का क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा ख्याल है या शायद नहीं आया, मुझे लग रहा है एक और भी दफा है, बिगनिंग में पहले यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है एक दफा और कयास आया हुआ है। राइट नाउ वी सॉ टू पेपर्स, एक 2024 में और एक 2020 के अंदर है, और बाकी चारों सोर्सेस कंबाइन आते हैं कभी कभी। तो वो भी थोड़ी सी ट्रिक आपको सीखनी है। ये क्वेश्चंस का बैंक है, आपने घर जाके लाजमी एक दफा इस क्वेश्चन बैंक को देखना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है वो अब्दुल हनान, आंसर मैंने आपको थोड़ा सा आंसर दे दिया कि कयास हो गया पहले, और कयास जब हो गया तो उसके बाद जब स्कॉलर्स इकट्ठे हो जाते हैं, काफी सारे उसके ऊपर एग्री कर लेते हैं, तो फिर वो इजमा बन जाता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर में अपेयर हो रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा एक चीज अनाउंस कर दूं, जो अक्टूबर नवंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपने मुझे मैसेज करके बताना है। मुझे दो तीन का पता है, उनको भी पता है कि आई नो देम, लेकिन जो एडिशनल जिन्होंने मुझे अभी तक अपडेट नहीं किया, दे आर अपेयरिंग इन अक्टूबर नवंबर, तो वो मुझे आपने मैसेज करना है, ताकि मैं आपको अगर कोई एडिशनल क्लास कंडक्ट करूं तो उसमें फिर ऐड कर लूंगा। और टेस्ट कल है, मैं टॉपिक शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो डन फॉर टुडे, टेक केयर, वी विल रिज्यूम द टॉपिक ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज सर। और हाफिज। इजमा और क्यास का टेस्ट नहीं है वो टॉपिक।